Good morning everyone. So in this video we will be seeing the useful microorganism. So what are useful microorganism? As the name indicate itself, the microorganism which are useful, which are beneficial to humans, to animals, to plant and to our environment are known as useful microorganism. Clear? Now there are few ways in which microorganisms are useful to mankind, to plants and to animals. Let's see the ways. In making foods and beverages, in making medicines and vaccines, in agriculture and in keeping the environment clean. So अब हम इन्हीं टॉपिक को वाइड करके पढ़ेंगे. फर्स्ट टॉपिक इज इन मेकिंग फूड्स एंड बेवरेजेस. So there are certain bacteria which are useful to us in many ways. They help us in making different foods. They help us in making different beverages. So here one example of a bacteria is given, that is lactobacillus bacteria. Which bacteria? Lactobacillus bacteria. Lactobacillus is a bacteria which is present in curd. Now this bacteria helps to sour the milk and helps in making the curd. Now what the book is trying to say is that if you add a little amount of curd to the milk, so some of the other certain amount of bacteria is present in that curd, and जो वो थोड़े से अमाउंट में बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि वो बाकी सारे मिल्क को भी कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, विद द रिजल्ट ऑफ सम बैक्टीरियल एक्शंस ऑन द मिल्क विच इज बीन रिटन इन द बुक इटसेल्फ आल्सो. यू विल बी एबल टू सी इट. Now bacteria are also beneficial in making tea, coffee and cocoa. Whatever the tea we used to drink, whatever the coffee we used to drink, and whatever the cocoa powder we use in our baking industry and in our homes also. Clear? Now in making curd and cheese. कर्ड का मैंने आपको बता दिया दैट लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है जिससे कि मिल्क विल टर्न इनटू कर्ड. एंड चीज़ बनाने का क्या प्रोसेस है? चीज़ बनाने का भी सेम प्रोसेस है. चीज़ बनाने में भी आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल. चीज़ इज ऑल्सो मेड बाय द कर्डलिंग ऑफ मिल्क यूजिंग दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया ओनली. ठीक है, होप दिस टॉपिक इज क्लियर. नाउ हियर एन एक्टिविटी इज गिवन. What is the activity? To obtain curd from milk. So in this activity you can perform it at your home also. It's very simple. आपको सिर्फ थोड़ा सा मिल्क लेना है एक पैन में and you have to heat that milk. At least आपको वो lukewarm कर लेना है. Clear? Lukewarm means हल्का गर्म करना है. Then you have to add a little amount of curd to it. That means around a teaspoon of curd. ठीक है, उसके बाद आप उसको स्टर कर दीजिए. स्टर करने का मतलब है आप उसको मिक्स कर दीजिए अच्छे से. एंड लेट मी टेल यू, ये आपको मीडियम फ्लेम पे करना है. उसके बाद कवर द पैन. आप पैन को एक अच्छे से कवर करिए लिड से एंड आप उसको अबाउट 7 आवर्स के लिए छोड़ दीजिए. ठीक है, 7 to 8 आवर्स के बाद आप उसमें देखेंगे कि ड्यू टू द एक्शन ऑफ सम बैक्टीरियाज उसमें क्या होता है कि द मिल्क विल गेट कन्वर्टेड इनटू कर्ड. The milk will get converted into curd. This is an activity to obtain curd from milk. You all have to perform the activity at your home. Now the next topic is making bread. You know that yeast play a vital role in preparation of the food. You may be familiar with the following activities. ओके, सो ईस्ट से हम सब फेमिलियर हैं. ईस्ट क्या करता है? बेसिकली ईस्ट किसी भी डो को फ्लफी बना देता है. एंड ईस्ट प्ले अ वाइटल रोल एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड. फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज हियर एन एक्टिविटी इज गिवन. सो हियर एन एक्टिविटी इज गिवन. इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है? टू नो द इफेक्ट ऑफ ईस्ट ऑन अ डो. डो क्या है? जो हम नॉर्मल जो आटा गूंथते हैं अपने घर में, दैट इज नोन एज द डो इन इंग्लिश.
So what happen here is कि you have to take half kg of flour, that is आटा और मैदा. हाफ के जी आपको फ्लावर लेना है, that can be आटा और can be मैदा, anything which is available to you. You can take some warm water in a cup and add around you can fill the cup till 1/3 of its portion. सिर्फ 1/3 तक फिल करना है, पूरा कप नहीं फिल करना है. दैट मीन्स आधे से थोड़ा सा ज़्यादा. क्लियर. नाउ आपको उसमें 2 to 3 टीस्पून शुगर ऐड करनी है. ठीक है. उसके बाद उसको अच्छे से स्टर करिए, मिक्स करिए. शुगर डाइल्यूट हो जानी चाहिए. नाउ यू हैव टू ऐड अ लिटिल अमाउंट ऑफ ईस्ट. ईस्ट पाउडर आपको लोकली मार्केट में अवेलेबल होता है, वो आपको वाटर में ऐड करना है. उसके बाद कवर द लिड. लिड को कवर कर दीजिए. लिड को कवर करने के बाद क्या होगा, यू हैव टू लीव इट फॉर अराउंड हाफ एन आवर. जब उसको हाफ आवर के लिए आप उसको छोड़ देंगे तो उसके बाद देन यू हैव टू टेक जो नॉर्मल आटा हमारे घर में प्रेजेंट होता है आपको वो लेना है और उस वाटर की हेल्प से आपको एक डो नीड करना है. ठीक है. नॉर्मली आप एक आटा गूंद लीजिए वही सेम ईस्ट वाले वाटर के थ्रू. ठीक है. एंड कीप दैट पर्टिकुलर डो इन अ वार्म प्लेस और अबाउट 2 to 3 आवर्स. अब 2 to 3 आवर्स के बाद आप उसमें एक चेंज देखेंगे. वो चेंज क्या होगा, वो चेंज बेसिकली ये है कि ईस्ट के वजह से वो डो राइज हो जाएगा. राइज क्यों हो रहा है, क्योंकि ईस्ट जो है वो शुगर को एज अ फूड यूज़ करती है. ठीक है. वो शुगर का ब्रेक डाउन करती है और अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से गिवन ऑफ हो जाता है. और इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, फर्मेंटेशन कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं, फर्मेंटेशन. जब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है तो वो एयर स्पेसेस बन जाते हैं. वहाँ पे एयर स्पेसेस बनने की वजह से वहाँ पे स्पेस जो बनती है उसकी वजह से वो फ्लफ़ी हो जाता है. ठीक है. वहाँ पे जो स्पेस बनती है उसकी वजह से वो फ्लफ़ी हो जाता है और फ्लफ़ी होने की वजह से वो डो आपका सॉफ्ट हो जाता है. वही उसी फ्लफ़ी डो से हमारे जो ब्रेड्स होती हैं, ब्रेड्स वगैरह बनती हैं. क्लियर. होप दिस एक्टिविटी इज़ बीन क्लियर टू यू नाउ. Now the next topic is in making vaccines and medicines. Now certain bacteria and fungi जो हैं हम उनका यूज़ करते हैं वैक्सीन्स बनाने के लिए. वैक्सीन्स में भी बेसिकली एंटीबायोटिक्स में बहुत ज़्यादा एक वाइटल और इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं. सेवरल एंटीबायोटिक्स जो हैं हम बैक्टीरिया और फंजाई की हेल्प से बनाते हैं. और ये जो एंटीबायोटिक हैं दीज आर यूज टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हमारे बॉडी में कुछ ऐसे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब अमाउंट बढ़ जाता है, वो एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा होने लगते हैं, तब हम उनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं जो कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को किल कर देते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल पेंसिलिन. पेंसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है जो कि फंगस की स्पीशीज़ मोल्ड से आती है और उस स्पीशीज़ को हम पेंसिलियन कहते हैं. क्या कहते हैं, पेंसिलियन. पेंसिलियम एक फंजाई है जिससे कि पेंसिलिन एंटीबायोटिक आती है. पेंसिलियम एक फंजाई है जिससे कि पेंसिलिन एंटीबायोटिक आ रही है. नाउ टेट्रासाइलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड यूथ्रोमाइसिन आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरिया और फंजाई से आती हैं. बिसाइड एंटीबायोटिक, अब इन एंटीबायोटिक के बिसाइड देयर आर सेवरल अदर डिजीजेज ऑफ ह्यूमन बींग्स जो कि हम विच आर बीइंग क्यूर्ड ड्यू टू सम एक्शंस ऑफ बैक्टीरियाज एंड फंजाई. वो डिजीजेस क्या हैं, जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, मीजल्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स एक्सेट्रा. ये सारी डिजीजेस हैं जिनका नेम हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी सुना होगा. सो आज हमारे इंडिया में ये सारी डिजीजेस इतनी डेडलीस्ट नहीं हैं. वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ सर्टेन बैक्टीरियाज एंड फंजाई वी आर एबल टू मेक द वैक्सीन्स ऑफ दीज डिजीजेस. ठीक है. अदरवाइज एक टाइम पे ये सारी डिजीजेस बहुत ज़्यादा डेडलीस्ट होती थी, लाइफ थ्रेटनिंग होती थी मैनकाइंड के लिए. क्लियर. नाउ जैसे कि ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बैक्टीरियाज और फंजाई, वैसे ही प्लांट और एनिमल्स के लिए भी हैं. तो प्लांट और एनिमल के लिए भी देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ मेडिसिन जो कि बनती हैं विद द एक्शंस ऑफ दिस बैक्टीरिया एंड फंजाई ओनली, जो कि इन्हें हेल्प करती हैं टू प्रिवेंट देम फ्रॉम वेरियस
डिजीजेस। फॉर एग्जाम्पल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक टैबलेट है जो कि बैक्टीरिया और ईस्ट को यूज़ करके बनती हैं। नाउ एक यहाँ पे टर्म आ रहा है एंटीबॉडीज़। क्या टर्म आ रहा है? एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ बेसिकली क्या है, हमारे बॉडी में जब भी कोई डिजीज़ होती है तो हमारी बॉडी एक एंटीबॉडी बना लेती है, ठीक है। उन डिजीज़ से लड़ने के जो एजेंट होते हैं उनको एंटीबॉडीज़ कहा जा रहा है। तो हमारी खुद की बॉडी एक एंटीबॉडी बनाती है जिससे कि हम उन डिजीज़ से लड़ पाते हैं। तो उन एंटीबॉडी को बनाने में जो मेडिसिन यूज़ हो रही हैं उन मेडिसिन में भी बैक्टीरिया और फंजाई का इम्पॉर्टेंट रोल है। सो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो कि बैक्टीरिया और ईस्ट के एक्शन से बनती हैं। सो बॉडी ऑफ अ डायबिटिक पेशेंट प्रोड्यूसेस वेरी लिटिल और नो इंसुलिन। सो इंसुलिन एक हार्मोन है हमारी बॉडी में जो कि हमारे बॉडी में जिसका लेवल नॉर्मल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। बट जिनको भी डायबिटीज़ हो जाता है, जिनको भी शुगर हो जाता है, जो शुगर पेशेंट्स होते हैं उनके बॉडी में, डायबिटीज़ वाले पेशेंट की बॉडी में इंसुलिन का लेवल बहुत कम हो जाता है या उनकी बॉडी बिल्कुल ही इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती है। तो देयर आर सर्टेन बैक्टीरियाज जो इंसुलिन बनाने में हेल्प करते हैं एंड विच हेल्प्स टू क्योर दिस पेशेंट। क्लियर? नाउ we will continue the next topic in the next video. Hope you have understood this much. Thank you.